I think there is a mute. Still the same problem. I just check the on like your mic options. Is it on or off? Mohit, ready for the mock? Okay. Who's ready? Drop the message, guys, so that कि फैजान को हम time दे सके. He can we check their settings if there is any problem. जस्ट वहां पे देखो म्यूट हो गया होगा शायद और कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. म्यूट का प्रॉब्लम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर म्यूट ही दिखा रहा है. And Shubdas, can we start with you? Because it may take time. फैजान अभी सेटिंग्स देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. Yes, sir. Okay. Faijan, you can just check your settings. We'll come with Shubdas first and then come with you. Drop the message when you're ready. And now Mr. Shubdas is ready. Very good. Okay, so Mr. Shubdas, introduce yourself. Sir, thank you for giving me this opportunity. Myself, Subhas Chauhan. I am basically from Pusa, Yavatmal district, but currently live in Pune. I did my graduation in 22 from Dibhat University, Raigad, Lonere. Currently, I pursuing the BIM course from Unix Civil. In this course, include AutoCAD 2D, 3D, and Revit structure, Revit architecture, and Tekla, Naviswork. And in this course, I have done many practice projects related to residential and commercial projects. That's brief about me, sir. Okay. What's your hobby? Sir, my hobbies are playing cricket and watching cricket. Okay. Last time when you played the cricket? Sir, before 3 days, sir. Before 3 days. Okay. How many Yes, runs sir. you score? Sir, actually, sir, 22 runs, sir. What do you understand by googly ball? Googly. Sir, googly ball is the sir confusing, sir. We can not handle at a time. This time, you confuse this time. Okay. And what do you understand by free hit? Free hit, sir. Free hit, sir. I can't explain this. Oh, you know that? Yes, sir. So simple, you can just say the result of the free hit means we can like play that ball like if we bowl that then they are not going to consider as a bold, right? So you can Yes, say sir. like that. Okay, no issue. Now come to the technical parts. What do you understand by federated model? Sir, federated model is the combinations of all the models created by the different stakeholder. The federated model is a help to ensure that the each and every component of the building is coordinated and integrated. Okay, and why should we hire you? Sir, I saw the opening on LinkedIn. I feel that my skill and knowledge are well suitable for this position. I have done many practice projects related to this job, and I am hardworking, quick learner, learn to new things quickly, and I can work independently. What's the salary expectations? Sir, I am a fresher now. I have no idea about that, but as per industrial norms. Okay, and it's not a good answer. I don't have an idea for that. Better you can say कि salary is not the priority for me. Like Yes, I just want to enter myself in the BIM industry, and they yes, can provide us as per the industry norms. okay, ठीक है, sir. नो आइडिया मतलब हमारे पास अवेयरनेस की कमी है ना.
अवेयरनेस की कमी थोड़ी है, अवेयरनेस तो हमें है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 6D? 6D. So 6D is sustainability of building. We can check the sustain how to perform the building. ओके, थैंक यू सो मच सुखदास, वेरी गुड. एंड कीप कंटिन्यू. बस ये वाली सैलरी वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? बाकी सही है, वेरी गुड. Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी. नाउ फैजान, यू कैन जस्ट ट्राई अगेन. यस, नाउ इट्स वर्किंग. What was the problem? I think Am I there's. audible, sir? Yes, you are. Yes, you are. Fajan, Yes. now audible now? Yes, sir. Very good. Okay. Now, Mr. Fajan, introduce yourself. First of all, good morning, sir, and thanking you for giving me this opportunity. My name is Mohammad Faizan. I am basically from Jamshedpur, Jharkhand district. Hmm. Currently, I am pursuing BIM course from New Civil Academy. I did my diploma. I did my diploma in the session 2016 to 2019. After that, I have done a bachelor in technology in civil engineering and passed out in 2023 in this BIM course. Currently, I am doing AutoCAD 2Ds, 3Ds, Revit architectures, structures, MOPs, Tekla, Navisworks, etc. And this is brief about me. Okay. What's your hobby? I want to spend more and more time with my parents. Okay. Right now you stay with your parents? Yes, Okay. And where you located now? Jamshedpur, Jharkhand. Jamshedpur. Okay. My location, my job location is in Noida. Are you comfortable for that? Yes, Okay. And now, Mr. Fajan, in my company there is a 2-year bonds. Are you comfortable to work with us with 2-year bonds? Two-year bonds. Are you in my company there is a 2-year bonds. Are you comfortable to work with us with 2-year bonds? yes, sir. Uh, if the conditions are in favor of me, I will stop it. Okay. And what's your salary expectations? It should totally dependent on industry's norms. As I am fresher, I am looking for the opportunity also. But you just mentioned you have a 6-month internship experience. Yes, sir. I did that internship experience Okay. So in means Unit Civil Academy. yeah, means you have a 6-month internship experience, right? Internship experience. Yes. Okay. What is the use of Tekla softwares? Tekla software is used for detailing structures such as we can details rebars of columns, footing, beam, slab, etc. Or in steel structure, we can do we can also provide connections. Till now, I have learned this much. So, Okay. In my company, sometimes required the extra time for suppose there is any work submissions. I need at least 1 or 2 hours extra times. Are you comfortable to work with us with the extra times also? yes, sir, I am comfortable to work with. If company will uh, give me Okay. And OT okay, company will give me overtime, overtime because time is very much oh important for us. overtime. Okay. Uh, what was your project in college? Drinking water supply in a college in our college campus. Drinking water supply. Okay. What pH of water we can use for the drink? Sorry, sir. What pH of water we can use for the drink? Meaning Se- 7. 7.
Why 7? Why 7? Not audible, sir. I said why 7? Why not 8 or why not 10? Hello. हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है फैजान आपका, या फिर उस मेरा तो इससे नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके साथ हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर नियर टू फिनिश, नो इशू। लाइक यू कैन जस्ट ऑफ योर माइक, आई जस्ट वांट टू गिव यू सम फीडबैक्स। Yes, sir. ओके, इज इट ओके You नाउ? are, you are asking something about pH What why not 8, why not 10, why 7 only? because if the water is less than 7, it is acidic in nature. Okay, and more than 7 then It is alkaline in alkaline. nature. ओके, Yes, sir. थैंक यू सो मच फैजान। फैजान, कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, एक तो सबसे पहली चीज़ कि आप अगर माइक का सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका पहले भी आवाज़ का प्रॉब्लम हो चुका है, आपको याद ही होगा, है ना? तो Yes, sir. Yes. ऐसा इंटरव्यू में हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व करिए। दूसरा प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकते, बट दूसरी एक चीज़ और आपको ठीक करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऐसा कि फेस को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं डालना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, थोड़ा सा स्माइल, मतलब स्माइल वाले बहुत हंस के नहीं, थोड़ा सा स्माइल होके आंसर करना है। उससे महसूस होता है कि सामने वाला रिजिड नहीं है, सामने वाला कैसा पर्सन है, वो लर्निंग एटीट्यूड का बंदा है। लर्निंग एटीट्यूड समझते हो ना, Okay. कि वो रेडी है कि हाँ ये चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है? जैसे तुमने बोला कि ओवर टाइम, ठीक है, ये बोलना अभी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज अभी तो तुम मेरे किसी काम में भी नहीं आओगे। तो अगर कभी प्रोजेक्ट आ गया तो आपको सिंपल यहाँ पर ये बोल सकते थे कि क्या बोलते हैं, यस आई एम रेडी, इफ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यू डेज आई विल बी ओके फॉर दैट, ठीक है? इफ दैट इज फॉर द फ्यू डेज आई विल बी ओके फॉर दैट, इज गुड आंसर। क्योंकि ओवर टाइम उनके लिए अच्छा होता है जो एक्सपर्ट होते हैं इस इंडस्ट्री के, समझ रहे हो? अच्छी बात है, टाइम इज वैल्यूएबल, बट उस ओवर टाइम में आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप वही काम कर रहे हो और ज़्यादा टाइम लेके। तो कुल मिला के देखो, ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, तो मैं आवाज़ अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, देखिए, हर एक जो कंपनी होती है ना, वो फ्रेशर्स हायर क्यों करना चाहती है, उसका रीजन समझो। पहली बात तो हायर नहीं करना चाहती, रीजन उसका तो जानते हो, नॉलेज नहीं है, ठीक है? आप लोग को तो मैं बहुत ब्रशअप कर रहा हूँ बार बार, इतने प्रोजेक्ट्स पर काम करा रहा हूँ, तब जाके आप काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, एडवांस लेवल पे जा रहे हो, ठीक है? आप लोग, मुझे भी सुखदास ने बोला कि मैंने अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के आप इतना मेहनत के बाद जा रहे हो, बट एक नॉर्मल फ्रेशर की बात बताऊं तो ऐसा होता है, उसको लाइन खींचना भी नहीं आता है, बहुत गंदा हाल होता है। तो कंपनी उसको हायर ही क्यों करे, ठीक है? अब कंपनी ने मैनेज कर भी लिया कि हम सिखाएंगे, तो उसको चाहिए लर्निंग एटीट्यूड वाला बंदा, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं एक कुक की जॉब के लिए आता हूँ आपके घर पे, और मैंने बोला कि कृष्णा, आपके यहाँ पर जॉब खाली है, अगर खाली हो तो मैं आपके यहाँ पर खाना बनाना के लिए काम करना चाहता हूँ। कृष्णा ने बोला कि आप क्या बना के देंगे? मैंने बोला कि क्लियरली बताऊँ तो मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं सब्जी बना सकता हूँ, ठीक है? अब कृष्णा ने बोला कि क्या बोलते हैं, आपको सैलरी इतनी दूंगा, मतलब कि मान लो कि 10,000 रुपये दूंगा, चलेगा? मैं बोलता नहीं नहीं, मैं कुक बन के आ रहा हूँ, मुझे 50,000 चाहिए। किस बात का? कि वो सब्जी बनाना आ रहा है, वो भी ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है? अब कृष्णा ने बोला कि मैं आपको काम को सिखा दूंगा, आई विल बी टीच यू हाउ टू कुक, और उसके लिए कई ढेर सारे रेसिपी जो भी खाते हैं बता देंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि वो सेल एक्सपेक्टेशन, मैं बोलूंगा जो आपको ठीक लगे वो दे दो। अब क्या हो गया, मैं एक फ्लेक्सिबल बंदा हो गया। दूसरी चीज, सिखाते समय हो सकता है ये बोलें कि आज ये सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको
जैसे कि मान लो कि अभी एक फूड होता है दही बड़ा, उसको बनाने में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, दही भी क्या चना को भिगाना, जो भी जैसे बनता है मुझे पता नहीं है, बट सुना है कि वो टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में 2-3 दिन से चल रहा है कि दही बड़ा बनेगा, बट अभी तक बन नहीं पाया क्योंकि टाइम प्रोसेस लंबा लगता है उसमें। तो क्या बोलते, मान लो ये दही बड़ा है, अब वो दही बड़ा को अब मुझे बनाने के लिए मुझे कृष्णा से बोलना पड़ेगा कि आई विल बी ओके फिर फॉर दैट इफ नीड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब चांस है कि कृष्णा हमें जॉब पर रख लेंगे केवल सब्जी बनाने के बाद भी। अदरवाइज तो आदमी कहता है ना, कुक का मतलब क्या हो गया, कुक का मतलब उसको हर एक फूड प्रिपेयर करना आना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ एक्सपर्ट है। अभी हमने एक कुक रिसेंटली कुछ समय पहले हायर करने का प्रयास किया था, तो उसके बड़े क्वेश्चंस थे, मुझे लगा यार बड़े नखरे हैं इसके, इसलिए मैं तो नहीं सा पाऊंगा। उसने बोला कि सुबह कितना रोटी खाएंगे आप, रात को कितनी रोटी खाएंगे। अब हम लोग थोड़े से गांव वाले आदमी, हमने बोला यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा कि हम सुबह कितनी खाएंगे रात को कितनी खाएंगे, क्योंकि वो जितना खाते पर रोटी वो कैलकुलेट करके सी रिवेल द प्राइजेस की इतना लगेगा। मैंने बोला ये तो डिपेंड ऑन द भूख है ना यार। ठीक है, हम लोग कभी रोटी गिन के थोड़ी खाते हैं, चपाती जो भी रोटी जो बोलते हो आप। तो हमने बोला इट में डिपेंड, समटाइम्स 3, समटाइम्स 4, समटाइम्स 2 ओनली। तो बोलती नहीं साहब आपको बताना पड़ेगा कि कितना रोटी सुबह और कितना रोटी शाम। मैंने बोला ये तो सॉरी इसके लिए वो नहीं है। अब उसके बाद ये भी है कि गेस्ट आएंगे, तो गेस्ट जब आएंगे तो वो जितनी रोटियां खाएंगे उनके प्राइजेस हम अलग लेंगे। अभी थोड़ा ज्यादा नखरा हो गया ना, कोई मास्टर शेफ थोड़ी हो कि हम इतने नखरे झेले कि कोई गेस्ट आ गया तो उसके ही पैसे जोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद झाड़ू पोछा, अब उसको इतना डिटेल बताना पड़ रहा था, मैं इरिटेट होकर मैंने कहा जाओ, इरिटेट होके भगा दिया। उसका रीजन क्योंकि ओवर हो रहा था कि कितने बर्तन रहते हैं, कितने मेंबर्स रहते हैं, ये वो। अब समझो ना कि अभी कोई इतना भी ज्यादा इरिटेट करेगा तो मतलब कुल मिला के उसको थोड़ा सा पोलाइटली बात करना था इस चीज को लेके कि हाँ लगभग 3-4 रोटी तो खाते होंगे आप, बड़ प्यार से पूछ लेते तो मैं बता देता कि हाँ इतना ही। गेस्ट महीने में 1-2 दिन आ जाते होंगे, हाँ आ जाते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। अब बोले कितने दिन गेस्ट आते हैं, अब गेस्ट को पता है कितने दिन गेस्ट आते हैं, कितने बर्तन होते हैं। कुल मिला के ये जस्ट फैजान आपकी लर्निंग है ये, कि हमें एक लर्निंग एटीट्यूड बना के रखना है। ठीक है, एक बच्चा आए और वो लर्निंग एटीट्यूड से आए, देखो वो अपने आप ग्रो करता चला जाएगा। हमारे एक सर हैं, उनके यहाँ पर एक बच्चा काम करता था, और अभी वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, मैं नाम उसका नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन वो एक ऑफिस बॉय के तौर पे आया था। एंड ही वॉज फ्रॉम वेरी वेरी पुअर फैमिली, आप समझ सकते हैं, क्लास 6 में था तब से आया था वो। मैं आपको ताजू की बताऊं, सर हमारे एक इंस्टीट्यूट चलाते थे, बड़े ही फेवरेट है मेरे और बहुत ही पूजनीय है। तो उनके यहाँ पर वो लड़का देख देख के, आपको बिलीव नहीं होगा, देख देख के ऑटो कैड सीख गया, रेविट सीख गया, स्टेट प्रो सीख गया, और मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैकेनिकल भी पढ़ाते थे वो, कैटिया सीख गया, सिर्फ देख देख के। और आपको बिलीव नहीं होगा, जब वो 10th क्लास में आया तो उसका लेवल ये हो चुका था कि जो बच्चे वहां पर सीखने के लिए जाते, ठीक है उसमें मैं भी था, ठीक है सीखने के लिए जाते, तो गाइड कर देता था कि आप ये गलत बना रहे हो ड्राइंग, ऐसे बनेगी ड्राइंग। बड़ी ताज्जुब की बात है। ठीक है, और क्लास 10th भी उसने कभी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उसको दिन भर यहाँ काम करना होता था। तो अब वो क्या था, उसका एक लर्निंग एटीट्यूड था, इतना अच्छा लगा कि मेरा एक दोस्त उसको बोला कि यार तू सीखने में बड़ा अच्छा है, उसको 12th करा दिया। ठीक है, फिर मेरे से थोड़े से उससे कन्वर्सेशन होता रहा, मैंने बोला तू डिप्लोमा कर ले। ठीक है, मैंने एक जगह पे रेफरेंस दे दिया, उसका डिप्लोमा हो गया। हमारा एक दोस्त था, एचओडी था कॉलेज में, उसका डिप्लोमा भी हो गया। सोचो कि एक ऑफिस बॉय भी नहीं बोल सकते बेचारे को, पोछा झाड़ू लैट्रिन साफ करना और देखते रहना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, 6-7वीं क्लास का बच्चा क्या जानेगा। और वो धीरे धीरे करके, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है वो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने उसको, क्योंकि उसके काम को देखा, बड़ा डेडिकेशन, मतलब साइकिल से आना है, सब बच्चों को ड्राइंग बताना है, झाड़ू पोछा भी करना है। इसको इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ उसने देखा इसका बहुत ज़्यादा लगन है, उसने उसको एज अ पार्टनर रख लिया। ठीक है, और पार्टनर रख के, अब पहले तो 20% पर रखा था, अब इसको 50% पार्टनर पे। और इस समय वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, और उसकी जो एज होगी मैक्सिमम 20 या 21 ईयर ओल्ड होगा, 20 के ऊपर तो नहीं है, बल्कि 19 ही ना हो। ठीक है, तो कुल मिला के अभी समझो कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो क्लास 6 में था वो, 6-7 में।
तो ये होता है कि लर्निंग एटीट्यूड कितना अच्छा है ना। इवन मैं बताऊं तो मैं भी उसके साथ पार्टनर के तौर पे काम करना चाहता था, या फिर एज एम्प्लॉय उसको हायर करना चाहता था, बट मैं अपनी शहर को छोड़ना भी चाहता था, इसलिए मैं बाहर आ गया, अदरवाइज उसको मैं जरूर रखता अपने पास। तो लर्निंग एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैजान। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर कृष्णा। मिस्टर कृष्णा, रेडी? Hello. यस। Yes, sir. ठीक है, ओके, चलिए नाउ, वैसे सुखदास गॉट 7 marks एंड फैजान गॉट 6.5, दिस इज द स्कोर। नाउ कृष्णा, कृष्णा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Krishna Kumbhakar, and I am from Palauda, Janjgir Chapa district, Chhattisgarh. And I have completed my Bachelor of Engineering from Rumta Engineering College, Raipur. After that, I have completed my M.Tech in Structural Engineering from Kalinga University. After that, I have done some job in road project and bridge project. Then after that, I have joined Mars Planning and Engineering Services Private Limited, in which I was working as a site engineer in water supply project, and now I am switching my job from Mars to SAR technical consultant as a support engineer. Along with it, I am pursuing BEAM professional course from Unique Civil, in which uh, I am learning AutoCAD, Revit, Revit structure, Revit MEP, Revit architecture, and Tekla structure detailer and Tekla structure designer, um, Navis work, etc. Okay, That's it, sir. first of all, just tell me how many companies you change. Means you pass out year for the degree. Uh, so for B, sir, 2015, and for MTech, 2018, sir. 15 and 18, right? Between 15 and Yes. 18, 1 year gap. So what was your role? You were doing job that time? Sir, I have just passed B and then joined road project working for 1 year, and after that I have joined bridge project for 2 years, sir. Along with it, I was doing my M.Tech, sir. ये रुक जाओ, ब्रिज प्रोजेक्ट के बाद तुमने रोड प्रोजेक्ट पे काम किया, राइट? No, sir. First road project, then bridge project, sir. ओके, अब यहाँ पे ब्रिज प्रोजेक्ट को स्किप कर दो, ठीक है? रोड प्रोजेक्ट तुमने 1 साल लगभग किया होगा। Yes, sir. ओके, अब क्या हो रहा है, तुम बहुत कंफ्यूजिंग कर रहे हो ना अपने करियर को। रोड में गए, ब्रिज में गए, पाइपिंग में गए, अभी तुम एक और प्रोफाइल बता रहे हो, राइट? तो इससे क्या हो जा रहा है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम डेडिकेट किस चीज के लिए बने हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट से फ्रॉम 15 to 16 यू वर्क ऑन द रोड प्रोजेक्ट, दैट्स इट, राइट? अब इसके बाद Yes. ब्रिज को भूल जाओ, अब ब्रिज को मेंशन ही नहीं करना, हटा दो अपने रिज्यूमे से, ठीक है? अब 18 से Yes. बताओ, 18 से क्या किया? Sir, in July 2018, I have joined Mars Planning and Engineering Services Private Limited company as a site engineer, in which I have worked um, in pipeline work and WTP work and overhead tank work, sir. ओके, सिंपल, इसको भी चेंज कर दो, यू वर द साइट इंजीनियर देयर। ओके, तो अब साइट इंजीनियर में तुम क्या थे, ऐसा बताओ उसको, आई वाज अ साइट इंजीनियर देयर, ठीक है? एक्सप्लेन नहीं करना है कि पाइप या फिर ये, ठीक है? अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेन में बोलो कि आई वाज वर्किंग फॉर देयर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड देयर माय रिस्पांसिबिलिटी इज बिल्डिंग से रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटी बता दो, क्रिएटिंग द बीओक्यू, समटाइम्स नीड टू सुपरवाइज द थिंग्स, इस तरीके से मटेरियल एस्टिमेशन, ये काम बताओ। कुल मिला के 18 से जो तुमने काम किया, 18 से अभी तक उसी कंपनी में हो ना? Yes, sir. Yes. 18 से अभी तक वही हो ना? Now, sir, yes, sir. Yes, sir. ओके, 11 September, I have to join Mars. STC, sir, SAR Technical Consultant. वेरी गुड, ठीक है, उसी में वर्क कर रहे थे, उसको छोड़ दिया, राइट? Yes, sir. राइट नाउ जस्ट फोकस फॉर द बीआई, राइट? Yes, sir. इसको ऐसे एक्सप्लेन करो, थोड़ा मॉडिफाई करो, ठीक है? मॉडिफाई इन द सेंस कि देखो कैसे एक एक कंफ्यूज करोगे ना इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर सोचेगा इसकी एक्सपर्टीज कहाँ है,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो कि क्या बोलते हैं 15 to 18 अगर कर दिया। और वो जो तुमने कलिंगा किया था वो एग्जाम एंट्रेंस गेट वगैरह के थ्रू किया था या फिर डायरेक्ट किया था एडमिशन? Direct, sir. डायरेक्ट किया था। Okay. After pass out my engineering, I just joined the one organizations. My profile was a site engineer. ठीक है, and like I just work on the road construction project. After that, I realized I need to explore more about my education, or I need to go for the higher educations. I just decided to go for the MTech programs. Okay, and I Yes. just completed my MTech full-time MTech program from the Kalinga universities in the structure engineering, and I just passed out in 2018. After that, I just joined the Mars group. There my role was my role was as a site engineer, and I worked there for the building construction projects, sometimes required for the water projects, and in their jobs I need to visit the site, I need to supervise the things. अब इसमें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब इसमें एक्सप्लेन कर दो. But after 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 a few years I just worked there and I learned all the technical things which is required on the site, but I realized I need to explore Yes. more about the engineering, so I just found my interest in the BIM engineering, and then I just Yes. started my full-time internship with Unix Civil. In that internship I learned Yes. each and every skills which is required for the beam, and in that I just started my learning from AutoCAD. I learned the Revit, architecture, structure, MEP, Tikla, Naviswork. What are the important concepts like LOD, scan to beam, CAD to BIM, all the concept I learned there. And then I just I'm ready to work with BIM organizations. I hope you like my projects, my portfolio. You can see these are some of my work samples. तुमने क्या किया, Okay. अपने पुराने एक्सपीरियंस को पूरा मॉडिफाई किया. मॉडिफाई नहीं करोगे तो पाइपिंग, ब्रेस, और क्या बोलते रोड, सामने वाला कंफ्यूज. ठीक है, जो तुमने 16 से 18 किया वो तो हटा दो, भूल जाओ कि ऐसा कुछ किया हमने. ठीक है, जस्ट 15 पास आउट हुए और तुमने एक साल जॉब किया, तुरंत एमटेक में एडमिशन ले लिया. एमटेक में एडमिशन लेने के बाद तुमने जॉब सर्च Yes. किया, बट यू डिड नॉट गेट द सुटेबल जॉब रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स. देन यू स्टार्टेड जॉब एज अ साइट इंजीनियर, एंड उसमें भी तुम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट Yes. और क्या बोलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कर रहे थे, ऐसा बोलना है. ठीक है, ऐसा करने के बाद व्हेन आई जस्ट रियलाइज कि आई नीड टू एक्सप्लोर मोर, आई थिंक माय ग्रोथ इज स्टक हियर. Then I just left my jobs and I just started my full-time internship with Unix Civil as a beam intern, and I learned all the skills which are required for the beam. Now I'm looking for the good opportunities. ये ज्यादा अच्छा है ना? ठीक Yes. है, कंफ्यूजन Yes, नहीं sir. रखना Yes. है. ठीक है, कंफ्यूजन रखोगे ना तो इंटरव्यूअर को लगेगा यार इसको रखूं कि ना रखूं, बड़ा डाइवर्ट बनता है ना. तो इस चीज पे वर्क करो कि ये डाइवर्ट नहीं लगना चाहिए तुम्हारा वर्क. Okay, now next is what is BIM? BIM refers to the building information modeling, in which we can prepare intelligent 3D model uh, with detailing, and that details can be used for the further work. Okay, what is 7D? 7D. Hmm. 7D, sir. What is 6D? I have to remember. 6D is a dimension of beam in which building performance is building performance of the building, and sustainability is considered in this dimension of beam, sir. In which date you just left your job? Yes, sir. When you just left your previous job, किस डेट को अपना जॉब छोड़ा? Yeah. Sir, I am currently in probation Provision period, mm, not provision, I think yes, yes, notice sir. period. Notice period, yes, sir. I'm in notice period in by 10th of September, sir.
and by 11th of September I have to join my next company, sir. Next company, okay. Means you're going to join the next company. You already selected for that? Yes, sir. Yes, sir. Oh, I what have offer period, sir. I have offer letter, and when I'm joining, then I will get my joining letter, sir. okay, so and their role is, means in that company role? Role is, sir, I am working there as a support engineer, sir. Okay, and what is the offer price, means CTC, what you get? That is, sir, 38,000 per month, sir. ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा। कृष्णा यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी करंट क्या ले रहे हो तुम सैलरी? Current, sir, 34 है, sir. करंट 34 ले रहे हो, ठीक है। देखो उसमें तुम कहाँ से हो, मीन्स तुम्हारा घर कहाँ पे है? Sir, I am in sir Janjgir Shahpur district, Balota, Chhattisgarh, sir. छत्तीसगढ़ And में। my जॉब? site, yes, sir. Job is, sir, just 60 kilometer away from my home, sir. ओके, देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कृष्णा, कि तुमने अगर चलो वो ऑफर लेटर ले लिया उनका, ठीक है, थोड़ा ना अपने ऊपर मेहनत करो या तो, और क्या बोल, मतलब ऐसे ना कि इतने से बीआई में एंट्री नहीं होगी, ये फिक्स मान लो, ठीक है। अभी जहाँ पर हो इसमें थोड़ी सी एंट्री क्या हो। दूसरी चीज़ क्या होता है, देखो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है कलाम, ठीक है, और देखो कि कोई भी ना, जैसे कि तुम्हारा जो ग्रोथ हो रहा है ना, वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं हो रहा है, ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, अभी sir. तुम देखो तो तुम 15 के पास आउट हो, है ना। अब तक Yes, sir. तुम्हें कम से कम पहुंचना चाहिए तो 70 to 80,000 तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब वो Yes, sir. क्या हो गया, उसका रीजन बताता हूँ। 18 से लेके तुम अभी तक एक ही कंपनी में घिसते रह गए खुद को, ठीक है। Yes, यहाँ sir. क्या हो गया, तुम्हारा रोल खराब हो गया। जब किसी भी कंपनी में ओवर टाइम रह जाओगे तो कंपनी जज कर लेगी कि तुम्हारा टैलेंट कितना है। चलो अच्छा किया तुमने चेंज किया, ठीक है, ये तो अच्छा किया कि तुमने चेंज किया, बट अच्छी बात ये होगी कि प्रोफाइल चेंज कर लो, क्योंकि साइट में अब इसके Yes, ऊपर sir. जो ग्रोथ होगा ना, वो 1-1 हजार का ग्रोथ होगा। अब 1-1 हजार का ग्रोथ कोई ग्रोथ होता नहीं है, ठीक है। तो मेरा Yes, सजेशन sir. ये रहेगा कि अगर तुम यही 10 साल साइट पर लगा दिए, इस पे बीम पर लगा दिए होते, अलग ही लेवल पे होते, अलग लेवल पे, ठीक है। तो जस्ट थिंक कि मैं टाइम को कैसे निकाल सकता हूँ, या फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो 2 महीने का बैक ले लेना। मेरा स्टूडेंट था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको लगभग ऐसे ही कुछ तुम्हारे जैसा एक्सपीरियंस था, अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, और फिर उसने बाद अपने बीम में, आपने गुरुकुल में आया वो, और उसका एक्सपीरियंस मुझे ही समझ में आया, तो कंपनी को कैसे समझ में आएगा। फिर मैंने बहुत मॉडिफाई किया उसको, इधर उधर, बहुत डेडिकेट था, मतलब उसका एक क्लास मुझे याद नहीं कि उसने छोड़ा हो। और फिर भी बड़ी मेहनत के बाद भी मेरे बहुत ऑफर पे गया, बहुत इंटरव्यू पे गया, फिर भी रिजेक्ट हो गया वो। और लगभग उसको ट्रेनिंग के बाद 2 महीने और लगे, लेकिन 2 महीने बाद जो उसने पैकेज निकाला ना, 40,000 का पर मंथ का पैकेज, पहला पैकेज उसने बीम का निकाला, ठीक है। और क्या बोलते हैं, साइट पर जितना उसने इतने सालों में नहीं पाया था, उतना उसने एक साथ पाया, 40,000। और अभी वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और टचवुड की आगे भी अच्छा वर्क करे। तो कुल मिला के मतलब कहना इतना सा है। और हाँ, उसने क्या किया था, उसने एक जॉब को लेफ्ट करके कुछ दिन तक अपने आप को रोका था, मैं रुकूंगा। अब इसमें रोकने में क्या होता है कि तुम मैरिड हो कि अनमैरिड हो, ये भी एक वो थोड़ा सा होता है, क्योंकि मैरिड लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती Yes. है ना। तो अब मैरिड हो तो तुम्हारा खर्च ज़्यादा है, और फिर थोड़ा सा कैसे कि घर पे जाके प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। रीज़न क्या रहता है, घर में 10 ठो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। अनमैरिड हो तो थोड़ा सा ये चीज़ आसान रहता Same, है। yes, sir. हाँ, Same thing is here, sir. I am married and I have two child, sir. हाँ, इसीलिए मैंने पूछा That's ना why. कि क्या बोलते हैं, मैरिड हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली अगर तुम साइड पर हो तो तुम्हें अब टाइम निकालना, फैमिली को भी टाइम देना है, बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कर गए तो समझ जाओ, क्योंकि अभी वो एज में हो कि कर सकते हो, बट आफ्टर Yes, फ्यू sir. Yes. इयर्स, मीन्स आफ्टर 35, तुम्हें बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी जो एक्सपेंसेस होंगे बढ़ जाएंगे। अब तो रिस्क लेना तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, Yes. ठीक है। तो अभी कल ही मुझे एक बच्चे से एक
सीनियर थे, मेरे सर ही लगेंगे वो। तो उनसे बात हो रही थी तो वो बोले कि मैं 42 ईयर का हूँ, मुझे बीम सीखना है सर, और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को भी सिखा दीजिए आप। तो कुल मिला के अब वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सीख नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, और 42 में मतलब उन्होंने बोला मैं कभी लैपटॉप चलाया नहीं हूँ। तो मैं कहा यार तब तो ऑनलाइन आपके लिए जाना बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बोला आपके बच्चे को सिखा देता हूँ। तो बच्चा उनका 14 साल का था, मैंने कहा ये भी एलिजिबल नहीं है। अब वो मिड ऑफ द एज, अब वो ना इधर ना उधर, परेशान। तो मैंने बोला पहले आप लैपटॉप को खरीदिए और कहीं से कंप्यूटर कोर्स पहले सीखिए, 1000-2000 रुपये पे करके। जब कंप्यूटर चलाना आ जाएगा तब हम हमारे पास आइए, तो आपका सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए अच्छी बात है। बट कृष्णा, जस्ट ट्राई टू गेट द एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड ट्राई टू मूव योर सेल्फ इन द बीआईएम इंडस्ट्री। जितना जल्दी करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। सर एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि सर हमारे यहाँ रायपुर में सर, यहाँ पे जो बड़ी सिटी है वहां पर सर बीम का ऐसा कुछ है नहीं मेरे को लगता है। और मैं चाहता था कि मैं इस मतलब ये तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर या बीम इंजीनियर दोनों में इंटरेस्टेड हूँ सर। तो मैं दोनों में से किसी एक प्रोफाइल पे मैं वर्क करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे रायपुर में या छत्तीसगढ़ में सर स्कोप इसका नहीं लगता है मुझे, और मैं शिफ्ट हो नहीं सकता सर साउथ में अभी फिलहाल। तो इस वजह से सर मैं साउथ में क्यों जा रहे हो? मतलब अभी। तुमको दिल्ली नोएडा में जा सकते हो, और तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा कि तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि नोएडा एक प्रोग्रेसिव सिटी है, तो सोच सकते हो, नोएडा के बारे में सोच सकते हो। रायपुर में है वैसे मैं बताऊं तो, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव जो होते हैं ना बैंक रायपुर में है। तो मैं जानता हूँ रायपुर में है कुछ कंपनियाँ, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, ठीक है। और अभी जो ये आस्था मैडम काम करती है, सी इज फ्रॉम द रायपुर, और दिखते हो कि रायपुर काफ़ी ओपनिंग ग्रुप में आती है। तो है रायपुर, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से कम है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये यस थोड़े से सर। बड़े शहरों में ज़्यादा है। बट ट्राई करो कृष्णा, क्योंकि अभी कर लोगे तो दोस्त ठीक है, बाद में बड़ी दिक्कत जाएगी यार, ठीक है। I need to more practice, sir, and यस I have not डेफिनेटली। proficient यस, on एंड हाउ मेनी software, sir. लेक्चर्स यू वॉच इन टेक्ला? Tekla, sir, 6 lecture and there 30 lecture, 13 lecture, sir. वेरी गुड, यू क्लियर द फुट ब्रिज? Foot bridge is not completed, sir. I have to make slab, sir, ओके, and after that, मीन्स वर्क इज इन that प्रोग्रेस। will. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा। कृष्णा थोड़ा सा कार्य करो जिससे कि तुम्हारा कैरियर जो है ना बढ़िया से मूव हो जाए दोस्त, ओके। बाकी सही है, Okay. पर Okay. इसी पर काम कर लो, ओके। नाउ Yes. who's ready? I think Mohit is going to office now. We'll start with you, Mr. Mohit. Who's ready, guys? Drop the message fast. Yes, sir. Yes, Mohit is going to office, so we'll start with Mohit, and after Mohit, Tejaswini, and then Nitin. Okay, now Mohit, just on your mic and video, please. Okay, you're not going to office today? No, sir, I will go some hours. Okay, what is the time for the office? Sir, it is 11. 11. Oh, 11 to? Yes. So 7:30. It's very easy, yeah. And how long from your distance? Means to your home? Sir, approximate half an hour it takes to go. Means 10 minutes, 10 kilometers. Yes, sir, approximate. Okay, you're living in Noida, No, sir, Jalandhar, Punjab. Punjab. So where are you working there? In Sir, Jalandhar? sir, I'm working in Jalandhar like it's a structural firm. Okay, okay, in Jalandhar. So, okay, Yes. got it. Because I already visited in Jalandhar when I was staying in the Chandigarh. So it's not that much distance from the Chandigarh. Yes. So okay, now Mr. Mohit, you ready to move on also, or you want to work there only? Sir, I'm ready to move to some another place like Delhi NCR. Yes, because in Jalandhar there is no beam farm. I don't remember that. Yes, sir. Maybe there, I don't think. So you need to move at least Chandigarh or Gurgaon. Gurgaon is the better solution for the beam industries. Okay, because if you check, approx 48 companies in the Gurgaon is working in the beam. Okay, you applied in any company also? No, sir, right now not any company. Okay, when you join your current company? Sir, when I joined, like when I was doing internship in Means 2024, I completed my BTech, and then after I was doing internship and I joined the same. oh, that's nice.
So it's approx how many months? Sir, it's been around 5 months. Okay, that's great. So I think you need to continue at least for the 8 to 9 months, and after that you just focus for to move on. Okay, now you're looking for the job opportunities in the BIM, right? Yes, sir. But you already working in the structure. Why not you want to plan for the structures only? Sir, I didn't found my interest in structures. That's why. Okay, and you found your interest in the BIM. Yes, sir. Okay, create your portfolio. Sir, I created half of my portfolio. You said that is your interest. Interest means nothing else. Okay, Yes, sir. interest is the girlfriend, means you just focus on the interest. Okay, so okay, what is BIM? So behind building information modeling is like collaboration environment where all the disciplines of the engineering meet and they build the structure virtually without any clashes, and they detect all the clashes and make it either What is classes? so clashes. You can off your camera. I think there's some network links. You can off your camera, it will be better. Yes, yes. The clashes are when two elements intersect with each other, and the structure of those elements is not possible, and we have to create another path to their uh, right position, and that is how we can detect clashes. Okay, and how many beam companies name you know? Sir, approximate 2 3 like Nailsoft Okay, and Platinum. if you're looking for the beam jobs, is it okay only 2 to 3 firms name you know? No, sir. How many lectures you was in Tekla? Sir, approximate 3 lectures. Hmm. That means you're lacking somewhere. What is the like any specific problem or any company burden? I don't think company burden. Company going at 11 o'clock and coming at 7:30. Yeah, it's very easy job. I think. Like I just listen. Okay. Right now your work responsibility is there. What is your job responsibilities there? Uh, sir, drafting and a little bit of stat work. A little bit of stat work and draft. Okay. Drafting in the Yes. sense structural drafting, right? Yes, sir. What is the use of crank bars? Crank bars in the beam. No idea. Was I forgot, sir. Okay. What is the use of development length? So development length is used to like to make the proper bond between the structure, like column to foundation or like beam to column. Okay. The proper bonding of the steel. What is the use of starter bar? So starter bar. Hmm. What is the use of dowel bars? Okay. Uh, what are the different types of walls we can draw in the Revit? So there are architecture walls and structure walls, Curtain walls. and so like partitions walls as well, Hmm. brick walls, Curtain walls. There are different and types of curtain walls also. so storefront and glazing. Storefront and glazing. Very good. What are the different types of arrays in the Revit? मोहित आपका फोकस पहले से कम हो रहा है दोस्त. पहले आप बहुत अच्छा कर रहे थे.
अभी आप कम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, अभी आप अंडर परफॉर्मेंस जा रहे हैं, पहले आप अप परफॉर्मेंस में थे। वर्क जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, पहले क्यों अच्छा करता था, अभी क्यों खराब कर रहा हूँ। इसका मतलब सीटिंग मेरा कम है, और सीटिंग कम क्यों है वो आपको सोचना है कि मेरा सीटिंग कम क्यों है। थोड़ा सा बढ़ाओ काम को, ठीक है, लेबर बढ़ाओ, थोड़ा सा ना खींच दो अपने आप को। देखो अभी बताया ना कृष्णा ने कितनी प्रॉब्लम होती है मैरिज के बाद, ठीक है। Yes, sir, मैं sure. खुद उस फेस में हूँ ना। अब तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए कितना आसान है, मेरे लिए, कृष्णा के लिए, और भी जो लोग मैरिड हैं उनको लिए कितना टफ होगा इस चीज़ को देखना। बहुत टफ होता है, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। अभी तुम्हारे पास कुछ टेंशन नहीं है। जॉब चेंज करना है, ठीक है। करंट जॉब का मैंने 2 महीने की सैलरी रोक ली अपनी, अच्छा ठीक है, ये चलेगा, 4-5 महीना तो चलेगा, ये आराम से खाएंगे, आराम से कम खर्चे करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। आसान है, बाद में आसान नहीं है दोस्त। तो अभी कर लोगे तो टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट फोकस, जैसे पहले करे तो वैसे अभी करो, ठीक है। Yes, sir, sure. ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज तेजस्विनी। तेजस्विनी, आर देयर? आई थिंक शी इज नॉट देयर। नितिन, अच्छा शी इज देयर। आफ्टर तेजस्विनी विल कम विद नितिन। तेजस्विनी रेडी? Yes, sir. Okay, very good. Tejasvi, what is 60? 60. 60. Hmm. Building performance, What is building performance? sustainability, Griha, and all What in is that. Kriya? Green build, yes, sir. Okay. What is by 4D? Time, Time. time Okay. management. You applied in any company, Tejasvi, till now? No, sir. Okay, and you complete your portfolio? सर वो रेंडरिंग का बताया था ना, प्रॉब्लम चल रहा है। Okay. So how you will focus for the rendering? Means how can we do the apply for the job? You complete your models? यस सर। Okay, there are some AI plugins. You can use that plugins for the renders. Okay, सर social वो yes, वीरे है ना? V-Ray, V-Ray. हाँ। So you can install the V-Ray. You install the नो V-Ray सर, नो सर, आई हैव tomorrow. नो आइडिया हाउ Okay, टू इंस्टॉल। you download that. नो सर, नो Okay, आइडिया, गेट okay, इनटू पीसी तो okay. देखो Contact with Alpesh. You have Alpesh number? ग्रुप में है ना। हाँ, ठीक है। Contact करके just do the today only, because if you're doing late, it will be your loss, यस right? We are near to the Tekla. Today we're going to cover the half of the Tekla approx, and after that we go for the Naviswar approx. Our training is complete. Okay, SketchUp and 3ds Max is your own practice, ठीक है। तो कुल मिला के अभी नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा। ओके, नाउ सर। यस। और प्राइमेरा और प्राइमेरा एमएसपी नहीं, का लास्ट वीडियो वो लास्ट में तो आप है ना, वो वो यूनिक आप सिविल ऐप। हाँ वो ऐप में हो, आप देख सकते हो, बट उसकी जॉब की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। जॉब इज डिपेंड ऑन द ओनली 3 सॉफ्टवेयर्स, रेविट, टिकला एंड नेविसर। जस्ट फोकस ऑन दिस 3 सॉफ्टवेयर, और उसमें भी जॉब लेने के लिए जस्ट रेविट इज द सफिशिएंट, अगर पूरा नॉलेज है तो। ओके, तो जस्ट फोकस ऑन द 3 सॉफ्टवेयर्स, रेविट, नेविसर एंड टिकला। दिस इज मैंने द सर्च एक्चुअल बीम सॉफ्टवेयर। मैंने सर्च किया सर, कोल्हापुर में तो शायद एक ही है सर जस्ट भी। सर्च आउट ऑफ द बॉक्स ना, like you just want to work in the Kolhapur only. ये सर बेबी छोटा है मेरा तो Okay, इसकी। so just search that organizations, where is the beam. Okay, just apply in that organizations, just compromise with the package, whatever package they said, you can say okay, I'll okay with that, I just want to enter myself. But for that you need to show your work, and for Yes. your work portfolio is the most important things, right? So just work on your portfolio first. Okay, how many lectures you watched in Tekla? 6 6 lectures you watched in the Tekla. Okay, and you not watch the third lecture 13 for the full days? 30 No. Okay, what is the use of Tekla software? to structural detailing, Structural detailing, creating 3D structure. structural details. Okay. Okay. Uh, what are the types of array in Revit? Radial and linear. Radial and linear. And in AutoCAD?
circular, rectangular. देख लो, अभी हमारा ऑटोकैड खत्म हुआ, भूल गए ना, कितना इजी चीज हम भूल गए। अब ऐसे रैबिट खत्म हुआ, रैबिट भूल जाएंगे। फिर टेक्ला खत्म हुआ, तो मैंने इसलिए बोला ना केवल 3 सॉफ्टवेयर जरूरत है, इनको अच्छा कर लो, सारे नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं सुबह से शाम तक करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, जबकि मेरे तो हर सॉफ्टवेयर मतलब 15 सॉफ्टवेयर पे मेरी एक्सपर्टीज थी, लेकिन सारे नहीं याद है। जो 12 आपके लिए मैं यूज करता हूँ आपके लिए और स्ट्रक्चर्स के लिए, वही 12 याद है। ठीक है, लेकिन उन 12 पे मैंने कम से कम 12,000 घंटे तो दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि वही जो टाइम है ना, वही हमारा लिए, इसीलिए वो हमें याद हो गया है। रीजन, टाइम बहुत दिया हुआ है। टेक्ला को मैंने कम से कम 100 घंटे तो काम किए होंगे, ज़्यादा ही किए होंगे। और अप्रॉक्स कम से कम 50 बैचेस लिया है मैंने। 50 बैचेस इंटू 30 आवर्स। ठीक है, मतलब 1500 घंटे के आसपास तो मैंने टेक्ला को यूज किया हुआ, तो इसलिए भूल नहीं रहा है ना वो। तो Yes. तुम्हें क्या करना है, टाइम देना है तेजस्विनी। ठीक है, और आई थिंक यू जस्ट लाइक नॉट डूइंग दैट मच हार्ड वर्क। ठीक है, ठीक है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट कंपनी को मैटर थोड़ी करता है इन चीज़ों से, राइट? तो जस्ट Yes. इंस्टॉल योर वेरियस सॉफ्टवेयर एंड जस्ट क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड शो मी योर पोर्टफोलियो। ओके, ठीक है, कल आपको अपने पोर्टफोलियो को चाहे 3 ही पेज देना है, सबको सबमिट करना है। ओके, चाहे Okay. 3 पेज दो, एक ही पेज दो, गलत पेज लगा के दो, बट दो। ठीक है, ओके, चलो कल मुझे पोर्टफोलियो दो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके Thank you. sir. ओके, नाउ नितिन, मिस्टर नितिन। जी सर। Okay, now Mr. Nitin, introduce yourself. So, first of all, good morning and thank you so much for giving me this opportunity. My name is Nitin Mahajan. I am currently living in Burhanpur, Madhya Pradesh, and I completed my civil engineering graduation from in 2019 from RC Patel, Shirpur, Maharashtra. And currently, I am working in a Shivraya Construction as a 3D designer. Okay, as a 3D designer, you are working there, Ji. and from how many years? From 2 years, sir. From 2 years. Okay, and you completed your masters also? No, sir, no, only BTech. Only BTech, but you pass out with 15, right? 19, sir, 19. 2019. Okay, from 19, then okay. From 19, you just pass out your degree, and you pass out your 12th. 12th in 2013. 13. Why there is a gap? So I have a backlog during BTech. Means you started your in BTech in the 14. Yeah, 13, 14. 13 means 14, definitely means 13 you pass out. Okay, 13, 14, right? Means you would take the Yeah, division in the 13s, right? 13. And Yes, okay, sir. and you just pass out your BTech in the 90, means 6 years, right? So 6 years. there was any yearbacks? Yes, a year back of 2 years due to health issues. Okay, any major health issues? Yes, sir, I have back pain issues. That's why. Or you have some medical reports Ankylosing also? spondylitis. Medical Yes, sir, I reports? have. Okay, you have medical reports, right? Then okay, so you just Yes, pass sir. out in the 19, and after that you just join in 2023, right? Or 22? Yes, sir. 22. So from 2022. 22, from 19 to 22, what you done in this duration? Actually, I am preparing for government exams, but financially it's not suitable for me to work studies for a long time. That's why I choose to work with Shivraya Construction from last 2 years. Okay, and now you're looking for the job in the BIM profile, right? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। देखो, आज तुमने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मैनेज करके किया ना सारी चीजों को। ऐसे ही हर जी चीज का एक आंसर रखना पड़ेगा। ठीक है, वो आंसर्स हर एचआर पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, तो यू नीड टू बी यूज्ड टू विद दैट कि जो क्वेश्चन पूछने जाना है इसको बना के रखता हूँ ना। ठीक है, एंड जी ओके, जी सो यू आर जस्ट वर्किंग एज अ 3D designer. So what's your job responsibilities there? I have to create a 3D model using Revit software. Okay, sometimes I need to do the 2D models also, ऐसा बोल रहा है। Yes, sir. Okay, Okay. now what is BIM? BIM is a building information modeling in which we created a 3D models using different BIM softwares, and in which we also do analysis, class detections, and collaboration many things. Okay, what's your current CTC? Currently, I'm getting
25,000 monthly. 25,000 monthly in you can say CTCs. CTC जो होता है वो year wise करो, ठीक है. Okay. CTC you can say कि I'm just getting the 3 LPA for now and क्या बोलते हैं, जी सर. what's your expected CTC? Expected nearby 4.5. 4.5. Okay, very good. Nitin, my company there is a 2-year bonds. Are you compatible to work with us with 2-year bonds? Yes, sir, I am. If conditions allow me to work for 2 years, I am ready to work. Okay, okay. And right now you're living in where? I am currently living in my hometown, Burhanpur, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, right? Okay. जी. Our job responsibilities in the Indore. Are you compatible to work with us in the Indore? Yes, sir, I am ready to work in How Indore. long from your distance? It's approximately 250 kilometers, sir. Burhanpur is in approx Sandhwa. Nearby Sandhwa. I think 60-70 kilometers from Sandhwa. There is one or more city near to Sandhwa. Very famous city is there. What is the name? Approx Sanavad or Omkareshwar nearby. Omkareshwar is Khargon. Khargon is the name, Yes. right? So you're approx from there, right? Okay. Yes, sir. Okay, now Mr. Nitin, what's your hobby? So I like to sketching and playing cricket. Staging or scratching? Sketching. Sketching. Okay. And जी. cricket, right? Last time when you played the cricket? जी. So approximately 15 days ago, because raining every day here is raining from last 15 days. Very good. Thank you so much, Nitin. This was nice to talk with you. अब नितिन थोड़ा सा इसमें ऐसे कर सकते हो कि आप जो ठीक है, आप अभी काम कर रहे हो अपने भाई की उसमें ना, साथ में कर रहे हो ना? हाँ जी. ठीक है. अब इसमें क्या कर सकते हो कि अपनी हर मंथ एक सैलरी क्रेडिट करो. ओके. जिससे कि तुम्हारा ना सैलरी स्टेटमेंट रेडी हो जाए. ठीक है. जी. सैलरी को रेडी करो 30,000 का. ठीक है. ओके. अपना ही पैसा उनको किसी अकाउंट से, अपने मम्मी के अकाउंट से दे दो, पापा के अकाउंट से दे दो, किसी के भी अकाउंट से दे के और ट्रांसफर करवा लो अपने अकाउंट पर. ठीक है जी सर. और उसके बाद निकाल के उन्हीं को विड्रॉ कर दो कि भाई आपको कैश दे दिया मैंने, तो जैसे भी तुम्हारा अपना बजट हो, अब वो तुम अपना फैमिली के जानो. ठीक है, लेकिन इसको जरूर कर लो. ठीक है. ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो हर एक कंपनी ना तुमसे पूछेगी कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा